Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and in today's statistics subject we are going to start a new series of the median, that is continuous series. We have already completed the individual and discrete series. Hopefully you understand it very well. Okay, please do the questions and try to practice more. Okay, now here in this median continuous series means you will be getting the class interval like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on. Okay, and here before we start I would like to tell you here, this is the lower limit, that is the first number or the first digit that comes in the class interval, that is considered as a lower limit, and this is known as the upper limit, that is the next one. But we will means consider only this as it is going to be applied in the formula for median in continuous series, right? So first of all, in this median in this you can say series here, in this continuous series, median cannot be located straightforward as we have already done in the previous series, that is the individual and discrete. Okay, now median lies in between lower limit and upper limit of the class interval. So I've already told you the class interval, that is the lower limit and upper limit. Now, steps to calculate median are as follows. First of all, in every question of the median, you have to calculate the data or arrange the data. Sorry, here not calculate. Arrange the data either in ascending or descending order. We prefer always ascending order, right? Now you have to calculate cumulative frequency. It means frequency is given, suppose 2, 4, 7, 8. Okay. Now cumulative frequency will be what? 2, then 2 plus 4, 6, 6 plus 7, 13, and 13 plus 8 here would be 21. Okay, if you're going to total here 2 plus 4 plus 7 plus 8, again you will be getting here 21. Okay, so like this we are going to calculate the class cumulative frequency. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी किस तरह कैलकुलेट करते हैं. एंड ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर आता है वुड बी सेम. नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला. n+1 वाले की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ओके, बिकॉज हियर what happens, the median should the median value should remain the same whether the series is arranged in ascending or descending order, and it happens only when the formula is n/2th item. Okay, so no need, we are not going to write here n+1/2 is used, and it is not used in continuous series. Okay, तो ये एक आपके लिए आसानी होगी, n+1 वाला हट गया यहाँ से, फॉर्मूला n/2th item खाली रहेगा हर continuous series में, right? Now median here, ME stands for the median and is the total of frequency, यानी कि total of frequency is this. Okay, now find out class cumulative frequency which is either equal or just greater than this. ठीक है, cumulative frequency हमें जो है उसका preceding रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मीडियन आता है 6, राइट, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला में आगे लिखेंगे तो नंबर हम कौन सा लेंगे, 2 preceding. Okay, preceding here it means like this. So find the class corresponding to C, cumulative frequency equal to n/2 or just greater than this. This class is called the median class. Now the main formula is this one. Okay, apply the formula, that is median is equals to lower limit plus n/2, जो भी हमारा आंसर आया होगा n/2 करके आइटम का, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, मीडियन के ऊपर वाली, अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल इनटू आई में स्टैंड्स हियर फॉर द क्लास इंटरवल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास इंटरवल 20 और 30 के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो इसका क्लास इंटरवल का क्या डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज द 10. अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 20 to 40 होता है तो क्लास इंटरवल आपका 20 हो जाता है, राइट? सो इस तरह आपका चलेगा, राइट? उसी आपको मीडियन का ही क्लास इंटरवल देखना है, किसी और चीज को नहीं देखना है. सो हियर इज द मीन्स व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बट इट इज ऑल्सो मेंशन हियर, सो यू कैन गो थ्रू दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन हियर. Find out the median. Now you have to find out the median. First you have to see that it is arranged in ascending order or not. सबसे पहले आप ये देखेंगे. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay. फ्रीक्वेंसी आपकी जो भी आ रही है इसको मैं टोटल कर दूंगी यहाँ पे, यानी कि आपका आ जाएगा n is equals to summation f is equals to 3 plus 4 plus 2 plus 7 plus 9, 25. Okay. Now I have to calculate the cumulative frequency. तो पहला तो 3 ऐसे ही आ जाएगा. Then 3 plus 4 7, 7 plus 2 9,
and 9 plus 7, 16. Okay, and 16 plus 9 is 25. Now I'm going to first write the formula. Formula क्या है? Median is equals to size of n upon 2. यहाँ पे कहीं पे भी आपको वो नहीं करना है, ठीक है? Item is equals to size of, ये आपका कितना आ रहा है? n is what? That is 25. ठीक है? 25 upon 2 with item. तो ये कितना आ जाएगा आपका? Size of 25 divided by 2. So you will get 12.5 th. जरूर लिखिएगा. 12.5 आइटम. 12.5 अब हमें किस में फाइंड आउट करना है? आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना है, राइट? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 7 में तो नहीं आ रहा है, 12.5 आ रहा है 9 में. सो दिस इज योर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का मतलब क्या है? लोअर लिमिट हमारी ये हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो गई, एंड जो आपका CF था वो ये आ जाएगा, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू राइट द अनदर फॉर्मूला. पहला तो आपका स्टेप ये हो गया. सेकेंड स्टेप क्या है? नाउ यू आर गोइंग टू राइट हियर फॉर्मूला. Median is equals to L1 plus n upon 2 minus cumulative frequency upon frequency into class interval. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका क्या हो जाएगा? L1 कितना आ रहा है ये जरूर मेंशन कर दिएगा, 20, ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में आसानी होगी, राइट? तो वैल्यूज इन द फॉर्मूला जो भी है आपकी, L1 20 हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 2 हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 7 आ गई, एंड क्लास इंटरवल दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 का है, 20 और 30 का 10. नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, एंड ऑफ कोर्स n अपॉन 2 कितना आ रहा है? 12.5. ओके, नाउ दीज आर द वैल्यूज आपको जिसमें किस में करना है? इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. L1 कितना है? 20 प्लस 12.5 आया था ना ये, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेते हैं प्रीसीडिंग, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल इसका? 25. नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी तो आपकी ये जस्ट वेट, 16 आया ना? वेरी सॉरी हियर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. देखो ये चीज गड़बड़ हो गई है, जस्ट वेट, वेरी सॉरी. ओके, 12.5 देखिए आया था, राइट? तो 12.5 का मतलब है ये स्टैंड करता है आपका यहाँ पे, 16 पे आया ना? 12.5 9 पे कैसे आ सकता है, राइट? नाउ अगेन वो इंटरवल तो आपका जो है वो तो क्लास इंटरवल दैट इज आई, तो वो सेम रहेगा, राइट? L1 आपका कितना आएगा? L1 आपका आ गया 30, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 7. ओके, एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो आपका मीडियन क्लास है, वेरी सॉरी. तो आपका ये आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी 7 हो गया, एंड जो आपका आई है वो कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस है क्लास इंटरवल का 10, एंड n अपॉन 2 तो हमें पता ही है, ठीक है? दैट इज 12.5. नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, तो L1 कितना है? 30 है, प्लस n अपॉन 2 कितना है? 12.5, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर की लेते हैं 9, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी आ रही है उसी में की लेंगे, ठीक है? 7, जिसमें का लोअर लिमिट होगा वहीं का आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, इनटू 10. नाउ यू गोइंग टू solve this. 12.5 minus 9. Okay, so you will get here 3.5 upon 7 into 10. Then again is equals to 30 plus 3.5 into 10 upon 7. So you will get 5 here. तो कितना आएगा? 30 आपका मीडियन, 35 आपका मीडियन हो गया. 30 plus 5, 35, right? So median is equals to 35. Answer. Please take the screenshot.
This is your first question of the median. Now second question. Find out the median. वैसे ही करना है हमें. Frequency यहाँ पे मैं mention कर देती हूँ. Frequency is, that is number of students frequency, and marks is your X. Okay. 15, 21, 35, 52, 49, 17, 3, and 1. Okay. So first I'm going to do the total of these. So n is equals to summation f is equals to, इन सबको ऐड करेंगे तो 193 आएगा, राइट. ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, पहला हम ऐसे ही लिख देते हैं एंड देन zigzag मैनर. ओके. 15 + 21 you will get 36, 36 + 35 you will get 71, 71 + 52 123 + 49 172, 172 + 17 189, 189 + 3 192, 192 + 1 193. Now I'm going to do what? That is the formula, right? So पहले करेंगे median is equals to size of n upon 2 with item is equals to size of, कितना आ जाएगा था, 193 upon 2 with item, right, is equals to size of 193 divided by 2 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 96.5 आइटम. नाउ अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये नंबर ढूंढेंगे. 96.5. देखो 71 तो ये कम है तो इसी में आ रहा होगा 96.5. तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास. ऑलवेज राइट दिस. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे. सेकेंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड फॉर्मूला है. मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ठीक है. ना वैल्यूज क्या क्या है आपकी, L1 कितना आ रहा है इसका, देखिए ये आएगा 40, राइट. देन आपका n/2, आपका ये तो आया ही है 96.5. ठीक है. बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको वैल्यूज याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला, राइट. देन फ्रीक्वेंसी हम वहीं के लिए लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 52 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रीसीडिंग होती है, यानी कि इसके ऊपर वाली 71. एंड क्लास इंटरवल आप देख लिए कितना है, तो 40 और 50 का डिफरेंस क्या है, 10. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ठीक है. L1 कितना है, 40 प्लस 96.5 अपॉन आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 52 माइनस कितना था, CF 71 इंटू 10. 40 प्लस 96.5 minus 71, you will get 25.5 upon 52 into 10. So you will get 40 plus 4.90. You will get 44.90 marks. Marks are given here now. So this is your median. Okay. This is your answer and you can take the screenshot. First, what we will do here, we will see that the class intervals are properly arranged in ascending or descending order or not. Then frequency का total कर लेंगे, that would be your n. Okay, n is equals to summation f is equals to whatever is the total. Then इसका जो आपका होता है ना total n का, that is frequency का, वो आपका last cumulative frequency होता है. Remember this. पहले हम ऐसी frequency को as it is उठा के ऐसे ही लिख देंगे and then we are going to add. ठीक है. Now next we are going to apply this formula. हमेशा यही होगा, n+1 कहीं पे भी नहीं आएगा मीडियन में. ओके. सो n/2 आइटम हमने किया, जो भी हमारा टोटल था उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से.
तो हमारा आ गया जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसमें हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो नंबर कहाँ पे आ रहा है, राइट। उससे ज्यादा या तो आएगा, ठीक है। तो 123 यहाँ पे था, अगर 96.5 है तो 71 में तो 96.5 नहीं आ रहा होगा, इट मीन्स 123 में कहीं ना कहीं होगा ये नंबर। सो वेयर इट लाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लोअर लिमिट, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हम अबव लेते हैं, उसके ऊपर का नंबर का, मीडियन क्लास के ऊपर का, ये मीडियन क्लास जरूर कर लेना मेंशन, राइट। एंड देन डिफरेंस ऑफ दिस क्लास इंटरवल, यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमेशा आई होता है, ओके। एंड देन यू कैन इजिली सॉल्व, पहले हमेशा इसको सॉल्व करिएगा, देन यू आर गोइंग टू ऐड दिस, ओके। L1 में सिर्फ ऐड करना होगा, इट वुड बी इजी, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द वैल्यूज, it would be easy for you to put the values in the formula, okay. I hope you understand it. Now we are going to do one more question, and question number 4 you will take it for your homework, right? This is for your homework. Now this part here, find out the median. अब देखिए median इसमें क्या है, the series is not arranged, okay. सबसे पहले आपने देखा series arranged नहीं है because here 40 to 50 है और फिर क्या है 30 to 40 है. So what we will do here, first we are going to arrange here solution. Marks को हम x मान लेते हैं and number of students को हम f मान लेते हैं, and then we are going to calculate the cumulative frequency, right? ऐसे ही तो करते हैं हम. So let's try here. 0 to 10 देखो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खाली कितनी है 1, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं उल्टा लेके चल सकते हैं, देखो नहीं होता तो हम तब भी अरेंज ऐसे ही करते हैं, राइट। 50 तक है, राइट। 22 30 32 40 एंड 42 50. ठीक, 9 था, देन 20 to 30 में कितना है, देखिए 12 है, देन 30 to 40 में कितना है 7 है, 40 to 50 में कितना है 2 है. सो n इज इक्वल्स टू सबमिशन f इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 100, नॉट 100 ईयर, सॉरी 31. 100 कैसे आ जाएगा इतने कम नंबर्स में, ओके। 1 + 9 + 12 + 7 + 2 फिर 31 आ गया, राइट। नाउ 1 का 1 हो गया, 9 + 1 10, then 10 + 12 22, 22 + 7 29, and 29 + 2 31. Now I'm going to write the formula. Median is equals to size of n upon 2th item, size of 31 upon 2th item, size of 31 divided by 2, तो आपका आ गया 15.5 फिफ्थ आइटम, 15.5 आइटम. अब देखो 15.5 यानी कि 10 में तो होगा नहीं, मीन्स 22 सॉरी. तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास, ये हमारी हो गई लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके. नाउ लेट्स just apply the formula. Median is equals to L1 plus n upon 2 minus cumulative frequency upon frequency, sorry, on frequency into I. Okay. Now I'm going to just write in the formula is equals to L1 कितना है 20 plus 15.5 minus 10 upon 12 into I difference क्या 20 और 30 का 10. So you will get here 20 plus 15.5 minus 10 to 5.5 upon 12 into 10. Simplify जब आप करेंगे 5.5 into 10 upon 12, so you will get 4.58. So that means answer is 24.58 marks is the median, and this is your answer. अब इस क्वेश्चन में क्या था, लेट्स सी, ये अरेंज नहीं था. सो फर्स्ट वी अरेंज इट इन द ascending order,
ठीक है, अगर मान ली यहाँ पे होता 20 to 30, यहाँ पे होता 0 to 10, यहाँ पे होता 4 to 40 to 50, यहाँ पे होता एंड सो ऑन, तब भी हम इसी तरह इसको अरेंज करते हैं, 0 to 10 पहले लिखते हैं, फिर 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। ओके, मेन थिंग इज व्हाट, दैट इज n/2 ट्वेल्थ आइटम आपको मीडियन का निकालना है। उसके बाद आपको सीधे ये एक रो में फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाले नंबर की लेनी होगी जो मीडियन क्लास के ऊपर का होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल and can solve the question number 4 here as your homework, right? So see you soon in the next video. Keep watching, keep learning, and keep practicing. Thank you.